Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon, so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or queries, anything. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material or live classes, for that you can contact us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. You can also follow us our Facebook page and Instagram page for more updates, that is the SB Scholars Academy. And for the many queries and questions, you can join our Telegram group, that is also in the name of the SB Scholars Academy. We are also providing the previous year question bank, practice set question bank and quick revision note, under which key points and all the things are mentioned. Even complete notes are also available. For that you can contact us sbscholarsacademy@gmail.com Gmail ID, and also you can contact us our WhatsApp number, that is the 7426888640. This number is mentioned in the description box, so you can go and check from there for the confirmation of the number. Today we will discuss a very important topic from the exam point of view. This is the different type of diet. As we know that there is other some types of diet, such as full fluid diet, liquid diet, soft diet, normal diet. Apart from that, there is another types of diets are also available, which are given to different types of patient according to their conditions, according to a disease which is associated to the particular individual one. Today we have discussion about the some three diets, such kind of diets, that is the DASH diet, first one, that second one that is the Campner's diet, and third one that is the ketogenic diet. So आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो हम थ्री टाइप्स ऑफ डाइट की बात करेंगे, जो कि एक कंटिन्यूएशन है. इसके अलावा भी हम और भी डाइट्स के ऊपर वीडियोस अपडेट करेंगे. सो फॉर दैट यू जस्ट कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियोस. तो आज हम इन तीन डाइट्स के बारे में बात करेंगे, डाइट्स के बारे में बात करेंगे कि ये डाइट्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज डाइट्स, विच फूड्स इज़ इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर डाइट, व्हाट इज़ अवॉइडेड, हाउ मेनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड, बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर was asked in the exam, and there is a high chances NTA UGC NET this will ask also in the exam. So let's go with these particular diets. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डैश डाइट. ओके, तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज़ द व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डैश. इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते होंगे, यू कम टू नो अबाउट दैट कि डैश के बारे में पूछा गया है कि डैश क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विच काइंड ऑफ पेशेंट्स to whom it is recommended or for whom it is suggested by the dietitian or physician. तो सबसे पहले अगर हम डैश की फुल फॉर्म को देखते हैं, तो दैट इज़ द डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन. दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द डैश डाइट. So basically, as it food form suggests, its full name suggests that कि this diet is especially given to the hypertension patient. That means कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको डैश डाइट जो होती है वो रिकमेंडेड होती है. इसमें क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इन दिस डाइट? बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट फिश. फैट जो होता है, जो मिल्क होता है, दैट इज़ द लो फैट, जिसको हम टोन्ड मिल्क भी कह सकते हैं. ठीक है, लो फैट इंटेक, फैट का भी इंटेक जो होता है वो भी लो होता है. इसके साथ साथ सोडियम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दैट इज़ द सॉल्ट, हम कह सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में इंक्लूडेड होता है. तो ये सारी चीज़ें इस डाइट में बेसिकली इंक्लूडेड होती हैं. तो व्हाट इज़ इन दिस डाइट? बेसिकली दैट इज़ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश. Whether I am talking about the milk, so it is also low fat milk, that is we can call in the another term, that is the toned milk, जिसमें आपका जो फैट होता है वो निकाल लिया जाता है. तो मे बी लो फैट मिल्क का वो ऑप्शन ना दे के वो आपको टोन मिल्क का ऑप्शन दे दे. दैट इज़ अ सिमिलर थिंग. लो फैट इंटेक. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ज़्यादा फैटी फूड्स नहीं खाने हैं, फैट का आपको इंटेक जो है वो लो ही रखना है, और उसके साथ साथ सोडियम भी कम होना चाहिए.
So now what kind of questions can be asked from this section, that is very important. When you are reading any concept or anything, this is very important, you come to know that what kind of questions can be expected from this particular section. So for that there is a one question that is directly asked from this section, that is what is the full form of the dash. So it is the dietary approach to stop hypertension, कि इसकी full form क्या होती है. The second question is that कि what kind of food is recommended for this diet, कि किस तरह के फूड जो होते हैं या खाना जो होता है इस डाइट के अंदर रिकमेंडेड होता है. सो फॉर दैट आपका ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, लो फैट मिल्क, लो फैट एंड लाइक दिस, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोडियम होता है वो भी. तो ये दो तरह के क्वेश्चंस बेसिकली मे बी उसके ऑल्टरनेटिव्स या कुछ सिमिलर वर्ड्स एग्जाम, क्योंकि डायरेक्टली इतने इजी वर्ड्स नहीं पूछते हैं, तो आपको उस हिसाब से या कुछ फूड प्रोडक्ट्स के नाम भी देके वो पूछ सकते हैं कि आइदर इट इज़ कम अंडर एज अ डैश डाइट और नॉट. ठीक है, तो आपको इस हिसाब से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है. सेकेंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंपनर्स डाइट. क्या होती है? तो दिस इज बेसिकली रिजिड राइस फ्रूट डाइट फॉर हाइपरटेंशन. अब हमने पहले एक डाइट के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज ऑल्सो फॉर द हाइपरटेंशन, एंड कैंपनर्स डाइट इज ऑल्सो फॉर द हाइपरटेंशन. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं विच यू हैव टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर डाइट. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, 250 to 300 ग्राम ऑफ राइस इज़ बॉइल्ड इन प्लेन वाटर और इन फ्रूट जूस. तो बेसिकली इसमें यहाँ पे जो आपका राइस होता है उसको आप या तो प्लेन वाटर में या तो फ्रूट जूस में बॉईल करते हैं, एंड इसमें किसी भी तरह का जो सॉल्ट होता है वो एडेड नहीं होता है. फर्स्ट इज़ दैट. सेकेंड वन दैट इज़ द फ्रेश या कैंड फ्रूट्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं, या आप फ्रेश फूड भी यूज़ कर सकते हो. और आप कैनिंग अगर आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज वी विल अपडेट अ वीडियो ऑन द कैनिंग प्रोसेस कि कैनिंग और कैंड फ्रूट्स क्या होते हैं. तो या तो फ्रेश फ्रूट या कैंड फ्रूट्स इसमें अलाउड होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम किस चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो एक तो इसमें सॉल्ट के रिस्ट्रिक्शंस हो गई, दूसरा इसमें आ गया ड्राई फ्रूट्स अलाउड नहीं होते हैं. तो ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं अलाउड होते? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छे अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, हर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो देयर इज़ अ हाई चांसेस टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, फ्रूट्स में बी ईटन रॉ और स्वीट विद द शुगर और फ्रूट जूस. तो इसमें शुगर बेसिकली अलाउड होती है, शुगर के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. तो आप इसको रॉ भी खा सकते हो, प्लस स्ट्यू करके भी खा सकते हो विथ शुगर और फ्रूट जूसेस. तो मतलब कुछ मिक्स करके ऐसा जिसमें आपका जूस भी हो और फ्रूट्स भी हो और शुगर भी हो, लाइक दिस. तो दिस इज़ द की पॉइंट कि इसमें शुगर अलाउड होती है. 100 ml ऑफ फ्रूट जूसेस बट नो एडिशनल वाटर. तो कितना फ्रूट जूसेस जो होता है, 1000 ml ऑफ फ्रूट जूसेस जो होता है वो अलाउड होता है, बट इसके साथ आपका जो एडिशनल वाटर है वो इसमें नहीं होना चाहिए. Another one related to this diet, that is the supplement of iron and vitamin is prescribed. As in the earlier we see that there is a very like restricted foods are allowed in this particular diet. So there is like कि आप इनको supplements दे सकते हो like iron के, vitamins के, क्योंकि हमारे essential मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारे जनरल बॉडी के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो इसके सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए जा सकते हैं. This diet is continued for the 6 weeks. तो basically for how many days this diet will be recommended, that is for the 6 weeks. Apart from that कितनी कैलोरीज इससे मिलती हैं, दैट इज़ द 2000 कैलोरीज, 15 to 30 ग्राम प्रोटीन, 5 ग्राम फैट, 460 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 100 to 150 mg sodium. So this kind of amount of nutrients will be provided from this particular type of diet as you followed all the instructions that is given in for the particular diet. This diet is free from the cholesterol. और ये डाइट जो होती है बहुत रिस्ट्रिक्टिव होती है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिटिव कंटेंट. एज वी सी दैट कि इसमें जो भी आपके डाइट्स में जो भी फ्रूट्स आइटम्स जो भी इंक्लूडेड हैं, इसमें आपकी एक बैलेंस डाइट नहीं है. मतलब इसमें सारे फूड ग्रुप्स और सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं. और इसके साथ साथ ये आपके 6 वीक्स के लिए रिकमेंडेड है. दैट मीन्स इट इज़ समथिंग लॉन्गर ड्यूरेशन. तो आपको इस चीज़ के लिए ये डाइट जो होती है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है. अब इससे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इसमें जो डाइट है उसमें आपके राइस भी होता है और फ्रूट होता है. दो इसमें मेन चीज़ है जो एडेड है.
इसके साथ साथ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आपके कैंड फ्रूट्स भी अलाउड हैं और रॉ फ्रूट्स भी क्या कहता है अलाउड हैं। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द असर्शन एंड रीजनिंग मैनर कि विच काइंड ऑफ फूड या ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फॉल्स करके आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें शुगर अलाउड है, तो जो कि मोस्टली डाइट में हम क्या देखते हैं कि शुगर जो होती है वो अलाउड नहीं होती है, क्योंकि शुगर बहुत हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट हाई होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि इसमें शुगर जो है वो अलाउड है। तो दिस इज़ द key point, if you are giving the 1000 ml of fruit juices, there is no additional water is allowed. Okay, so directly this questions can be asked from this section कि कितने वीक के लिए रिकमेंडेड होती है, सप्लीमेंट्स आर अलाउड और नॉट अलाउड। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द ऑल द की पॉइंट्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Now the third one, that is the ketogenic diet. Nowadays ketogenic diet are very trendy because it is basically like people are just taking it for the losing the weight. But if I am talking about the scientifically, तो ये डाइट जो होती है वो सीजर कंट्रोल के लिए होती है। लेकिन रिसेंट रिसर्चेज और जो भी आपके डाइटिशियंस हैं बहुत सारे और ऐसे क्रैश कोर्सेज भी कराए जाते हैं, फॉर दैट कीटोजेनिक डाइट आर रिकमेंडेड फॉर द वेट लॉस, बट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग और यू कैन से दैट कि बहुत ही आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा आपकी जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड होती हैं, लेट्स सी दैट। हाई फैट डाइट, तो बेसिकली व्हाट द पीपल आर रिकमेंडेड आइदर वी गो विद द डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट इफ एनीबडी इज रिकमेंडेड फॉर द कीटोजेनिक डाइट। बेसिकली दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस के लिए कीटोजेनिक डाइट वैसे रिकमेंडेड नहीं होती है, बट इट इज़ नॉट ट्रेंडी वन। तो हाई फैट होता है, मतलब बेसिकली आपको अपने डाइट में फ़ैट का इंटेक जो है वो बढ़ाना होता है, फैटी चीज़ें खानी होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत लो हो जाता है, प्रोटीन जो होता है वो मीडियम होता है, एडुकेट होता है, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है आरडीए के अकॉर्डिंग उतना आपको प्रोटीन दिया जाता है। तो बेसिकली ये किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, अगर हम एक बुकिश नॉलेज की तरफ जाते हैं, साइंटिफिकली अभी जाते हैं, जो अगर हम एक थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं, तो दिस डाइट इज़ बेसिकली रिकमेंडेड फॉर द सीजर कंट्रोल, बट नाउ द डेज इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द weight loss purpose. Okay, so this is a little bit controversial. We will update either this is a true one or not true one कि कीटोजेनिक डाइट वेट लॉस के लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इससे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। We will update with the another video. So thank you so much for watching this video, and also just watch all the videos. Keep watching us our video. Thank you so much.